Yes, students, in last lecture we studied about animal breeding, and we have seen that inbreeding depression, outbreeding, and in outbreeding, outcrossing, crossbreeding, and interspecific hybridization. And we have taken 2-3 examples that given in NCERT like Hisardale and the mule. So today we have to talk about plant tissue culture. Plant tissue culture is a way by which we can grow thousands or hundreds of plants in very small time, okay, through any part of plant. Like we can say this is a type of a vegetative reproduction or vegetative propagation. In vegetative propagation, generally we take any part of plant and we can say plant it in the soil, and after some time it grow and give us a new plant. This is the same method of vegetative we can say propagation, but in this method we take any part of plant or very small part of plant or any cell of we can say plant and grow complete plant in a nutrient medium. जैसे ये समझो कि हमने क्या देखा था, टेस्ट ट्यूब बेबी में देखा था, okay, that means by a single cell or by a small part of plant, through with the help of nutrient medium we can grow a complete plant and hundreds or thousands of plant in very small time. Okay, now see, like this is the zygote. This zygote is a single cell, and this single cell can give rise to a complete body, and the few cells of embryo and this zygote. If you remember, we have studied a term known as stem cell. Stem cell means ability of a cell by which it can give rise to or it can develop into a complete body. So this is known as stem cell. If we talk about plant cells की बात करें और plant cells में हम stem cell की बात करें, तो there is a property that is known as totipotency. In totipotency, that means by this process or by this mechanism, any plant cell or any plant part can give rise to complete plant. तो टोटिपोटेंसी जिन सेल्स में होती है उसे हम कोई भी दैट मीन्स पूरा प्लांट ग्रो करवा सकते हैं, सेल से भी या किसी पार्ट से भी. तो टोटिपोटेंसी सेल मीन्स वो किसका काम करेगी, स्टेम सेल का काम करेगी. इफ यू रिमेंबर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर द टिश्यू विच ग्रो कॉन्टिन्यूअस, एंड ईच एंड एवरी टाइप ऑफ टिश्यू only develop from the meristematic tissue. So we can say this meristematic cell or the meristematic tissue have the property of totipotency. तो meristematic tissue मिलता कहाँ पर है, like टिप पर. जैसे ये कोई यहाँ पर टिप है, ओके, किसी की या किसी ब्रांच की टिप है, where leaf primordia we can say are grown, और जहाँ पर वो डेवलप होते हैं. तो जो टिप पर है वहां पर हमें क्या मिलते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स मिलती है, और थ्रू दिस मेरिस्टेमेटिक सेल वी कैन गिव राइज टू ए कंप्लीट प्लांट. तो कंप्लीट प्लांट बन सकता है. नॉट ओनली मेरिस्टेमेटिक, सम अदर सेल आर आल्सो पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस. जैसे पेनकाइमा सेल्स है, उनसे भी ये ग्रो हो सकती है और डेवलप हो सकता है. सो प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है बेसिकली, दैट मीन्स इस वी कैन से टेक्निक by which with help of nutrient medium a part or cell of plant can give rise to fully, or we can say give rise to complete plant, is known as plant tissue culture. एक और टर्म इसके लिए यूज की जाती है, दैट इज नोन एज माइक्रो प्रोपेगेशन. ओके, माइक्रो मीन्स स्मॉल, प्रोपेगेशन मीन वो जो प्रोपेगेट हो रहा है, रिप्रोड्यूस हो रहा है, डेवलप हो रहा है. तो दैट मीन्स थाउजेंड्स ऑफ प्लांट हम बनाते हैं, ओके, थ्रू एनी पार्ट ऑफ प्लांट. तो नंबर इनका क्या होगा, यूज हो गया. सच प्रोसेस इज नोन एज माइक्रो प्रोपेगेशन. तो देयर आर सम टर्म्स which are given in NCERT like explant. Explant means that plant we have to use as we can say as a totipotency cell, और बन के
एनी पार्ट विच वी वांट टू ग्रो, चाहे वो हमने कोई लीफ लिया है, कोई फ्लावर लिया है, इवन वी कैन यूज पॉलन भी यूज कर सकते हैं, ओवरी भी यूज करते हैं, ओव्यूल भी यूज कर सकते हैं हम. ओके, देन टोटिपोटेंस की एबिलिटी of a plant cell or plant part to give rise to complete plant. Then micropropagation mean we can say production of thousands or hundreds or thousands or number of plant through the help of tissue culture. तो वो क्या हो गया हमारे पास, माइक्रो प्रोपगेशन हो गया. अब देखो हम इनको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं. सपोज देयर आर सीडलेस प्लांट्स. So seedless plant we can grow with the help of plant tissue culture. Second plant, like if any species which is near to extinct, बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने के पास है, तो उसका टिश्यू लेके हम बहुत सारे वैसे प्लांट बना सकते हैं. ऑल्सो इफ वी वॉन्ट डिजीज फ्री प्लांट, लाइक एनी प्लांट इज देयर और उस पर डिजीज आती है, और लाइक वी कैन से ए सिंगल प्लांट हमारे पास कोई और उस पर डिजीज है एंड वी वांट टू ग्रो द न्यू डिजीज फ्री प्लांट, तो हम उसका एक टिप लेंगे और उससे वी कैन ग्रो ए डिजीज फ्री प्लांट. और वी कैन से इफ वी वांट टू मेंटेन characters as such in next generation. देखो जैसे मान लिया with the help of plant breeding हमने कोई फ्रूट वैरायटी डेवलप की. ओके, नाउ इफ दिस फ्रूट वैरायटी will go into the next generation, तो यहां पर क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें क्या आएगी, वेरिएशन आएगी. तो नेक्स्ट जनरेशन में और वेरिएशन आएगी, उसके बाद और वेरिएशन आएगी. इफ वी वांट द सेम कैरेक्टर्स फॉर द अपकमिंग जनरेशंस, तो हम क्या करेंगे, उसको टिश्यू कल्चर की हेल्प से उसको प्लांट्स को ग्रो करेंगे. लाइक एक जनरेशन आई, उस एक वेराइटी के प्लांट से हमने उसके थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ प्लांट्स बना लिए, और वो हमने बाद में कहीं फील्ड पे या कहीं लगा दिए. ओके, तो दैट मीन्स वेरिएशन विल नॉट अकर, वेरिएशन नहीं आएगी. तो वैसे भी हम इसको कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज ए टाइप ऑफ वी कैन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट. जो कैरेक्टर है वो ऐसे से उसमें रिटेन रहेंगे. तो यहाँ पर एक टर्म है सोमा क्लोन. दिस क्लोन वर्ड वी स्टडीड इन चैप्टर नंबर 1. क्लोन मीन the offsprings are genetically and morphologically we can say similar to their parents in asexual type of reproduction. और वर्ड है यहाँ पर सोमा वर्ड आया सोमेटिक से. सोमेटिक दैट मीन सोमेटिक सेल, दैट मीन्स नॉन गैमेट सेल और नॉन जर्म सेल. तो सोमेटिक सेल हमारी बॉडी में सारी एक जैसी होती है, तो नेक्स्ट जनरेशन में भी वो वैसी ही रहेंगी इफ देयर इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो यहाँ से वर्ड आया सोमा क्लोन. तो दैट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर इज सोमा क्लोन, उसको हम सोमा क्लोन बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट इज मेरिस्टेम कल्चर. लाइक देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर. ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं. जैसे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ले रहे हैं तो उसको बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक कल्चर. जैसे हम ओवरी ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं ओवरी कल्चर. ओव्यूल ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं ओव्यूल कल्चर. पोलन ग्रेन ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं पोलन कल्चर. तो दैट मीन्स दिस इज ओनली टाइप ऑफ और वी कैन से फॉर्म ऑफ टिश्यू कल्चर जिसमें हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लेते हैं, तो वो हो गया हमारे पास मेरिस्टेमेटिक कल्चर. नाउ नेक्स्ट इज सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन. अब देखो there is a term known as protoplast. प्रोटोप्लास्ट क्या होता है कि इफ वी रिमूव सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल, तो रेस्ट ऑफ पार्ट इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट. सपोज देयर आर टू स्पीसीज और वेराइटी है, लाइक प्रोटोप्लास्ट. दिस सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इज लाइक ए इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है उसके जैसा. लाइक वी हैव ए वन वी कैन से स्पीसीज, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हो सकती है, और जीनस वी कैन से
सेम जीनस की क्लोज रिलेटेड स्पीसीज हो सकती है, और वी कैन से वैरायटी लाइक दिस इज द वैरायटी ए है एंड दिस इज द वैरायटी कोई बी है, एंड वी वांट ए वैरायटी इन विच बोथ कैरेक्टर्स वी कैन कंबाइन। जैसे ऐसा हमने पहले किसे किया था, प्लांट ब्रीडिंग से 15, 16, 20, 25 जनरेशन, 15, 16 जनरेशन तक हम उसको आगे लेके गए थे, एंड देन फाइनली वी हैव सीन दैट बोथ कैरेक्टर्स आर देयर इन ए न्यू वैरायटी। तो ऐसा हम इसमें कर सकते हैं, लाइक जैसे कोई वैरायटी ए है कोई वैरायटी बी है, तो इन दोनों को सबसे हम पहले क्या करेंगे, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन करेंगे। आफ्टर दैट प्रोटोप्लास्ट में दोनों प्रोटोप्लास्ट को हम क्या कर देंगे, देयर आर मेनी मेथड्स है, उससे हम इनको फ्यूज करवा देंगे। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। तो जब प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन होगा और इससे जब न्यू सेल्स बनेगी तो इसमें क्या होंगे, जो कैरेक्टर्स हैं वो बोथ सेल्स के होंगे। ओके, तो इस तरह का जो फ्यूजन होगा उसको बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो हियर द प्रोसेस इज प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। प्रोटोप्लास्ट मीन द रिमूवल ऑफ सेल वॉल, जो प्लांट से जो बाकी पार्ट बच गया जिसमें सेल मेम्ब्रेन और अंदर का कंटेंट है, दैट इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट। तो वी कैन आइसोलेट सेल। नाउ वी हैव टेक्निक, उससे हम सेल आइसोलेट कर सकते हैं, सेल से फिर सेल वॉल निकाल सकते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट बचा, दो प्रोटोप्लास्ट को ऐसे फ्यूज करवा दिया, बिकॉज वी वांट टू टाइप्स बोथ टाइप्स ऑफ कैरेक्टर। अब ये जो न्यू सेल्स का एक मास बना हमारे पास, दिस मास इज वी कैन से इज नोन एज कैलस। कैलस मीन वी कैन से मास ऑफ सेल, मास ऑफ सेल। और ये जो कैलस है ये हम किस में ग्रो करवाते हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम में, आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम में। और फिर जब उसमें थोड़ा सा रूट और शूट निकले उसको किसी पॉट में या ग्रीन हाउस में लगा के फिर हम उसको फील्ड पे लगा सकते हैं। तो दिस इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, और वी कैन से प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट वी कैन से काइंड ऑफ वैरायटी और स्पीसीज। तो अब इससे जो रिजल्ट आएगा उसको हम बोलेंगे सोमैटिक हाइब्रिड। क्या बोलेंगे, सोमैटिक हाइब्रिड। सोमैटिक सेल से बना है और हाइब्रिड है, अदरवाइज हाइब्रिड इज द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर एसेक्सुअल में हम फ्यूज करवा रहे हैं, तो दिस इज नॉन एज सोमैटिक हाइब्रिड। तो साइंटिस्ट ने ट्राई किया था, उन्होंने क्या किया कि पोटैटो और टोमेटो को आपस में फ्यूज करवाया इन दोनों के सेल को। तो ऐसा सोच रहे थे कि नीचे पोटैटो लगे और ऊपर क्या लगे, टोमेटो लगे। तो उन्होंने दैट मीन्स एक हाइब्रिड बनाया बाय द नेम ऑफ पोमेटो। पोमेटो, पो से आया पोटैटो से, मेटो ये आया टोमेटो के लास्ट से। ठीक है, तो वहाँ तो ना तो टोमेटो लगे ना ही पोटैटो लगे। ओके, वो फेल हो गया। दैट मीन बट दिस इज ए प्रोसेस बाय विच वी कैन डू दिस प्रोसेस और वी कैन मेक द सोमैटिक हाइब्रिड्स। ओके, कुछ क्रॉप में और में इसमें वेराइटीज में आपस में से करके किया हुआ है, समवेयर दैट इज सक्सेसफुल है। इज क्लियर और नॉट? तो करना क्या है, तो स्टेप क्या होंगे, फर्स्ट क्या करना होगा, टेक ए एक्सप्लांट, और एक्सप्लांट का कोई हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक एनी पार्ट ऑफ एक्सप्लांट, उस एक्सप्लांट को स्टेरिलाइज करते हैं ताकि उसमें कोई भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना रहे। आफ्टर दैट हम उसको वी कैन से कंट्रोल्ड कंडीशन में, वहाँ पर टेम्परेचर भी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो कंट्रोल कंडीशन में हम इसको किस में करते हैं, पुट इट इनटू न्यूट्रिएंट मीडियम। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट मीडियम में डालते हैं और न्यूट्रिएंट मीडियम में जो पार्ट है, कोई पार्ट है, वो सेल वो ग्रो करना शुरू कर देगी। नाउ व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड, लाइक इफ यू हैव सीन मनी प्लांट। ठीक है, तो मनी प्लांट क्या है, मनी प्लांट ग्रोज इन वाटर बट इन ऑल द सब्सटेंस विच आर फाउंड इन वाटर। या बहुत सारे ऐसे आजकल ऑर्नामेंटल प्लांट लगा रहे हैं जो बॉटल में ही ग्रो करते हैं, तो उनमें वो क्या करते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट डालते हैं, जैसे कोई कार्बन का सोर्स है या कोई इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स है, कोई अमाइनो एसिड है या कोई ग्रोथ हार्मोन्स है, तो दे आर फॉर्म इन वी कैन से रॉ फॉर्म में डालते हैं। तो वो उसमें क्या करता है, द प्लांट ओनली रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स
तो वो उसको मिल रहे हैं, तो दैट विल ग्रो। तो न्यूट्रिएंट मीडियम बनाते हैं, तो इन न्यूट्रिएंट मीडियम में सुक्रोज होता है मेनली, दैट इज एक्ट एज कार्बन सोर्स और कार्बन स्केलेटन का काम करता है। देन अमाइनो एसिड्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, कई तरह के विटामिन्स होते हैं, एंड ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं लाइक ग्रोथ हार्मोन्स लाइक ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। ओके, तो इसमें हम इसको ग्रो करवाएंगे। देन आफ्टर दैट, आफ्टर सम टाइम एक मास ऑफ सेल बनेगा, दैट इज नोन एज कैलस। ओके, और कैलस फर्दर क्या करता है, ग्रो करता है, उसमें रूट निकलती है, सूट निकलता है, और उसको हम फिर किसको कर देते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं इनटू पॉट में या ग्रीन हाउस में, और वहां से फिर आगे ट्रांसफर करते हैं। दिस इज अ कंप्लीट सेटअप ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर इन माय डिपार्टमेंट इन यूनिवर्सिटी। वी विल ट्राई टू विजिट देयर, जैसे ये कंडीशन सारी ठीक हो जाएंगी। तो दिस इज ओनली थ्योरेटिकल पोर्शन, इसमें ज़्यादा हमें चीज़ें नहीं समझ में आती जब तक हम उसको देखें ना। तो देयर इज ए कंप्लीट सेटअप ऑफ दिस प्लांट टिश्यू कल्चर, तो वी विल डेफिनेटली वी विल विजिट दैट लैब। अब तो वो हमारी लैब है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लांट टिश्यू कल्चर। ये कीवर्ड्स हैं, बस ये ध्यान रखने हैं हमें। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सिंगल सेल प्रोटीन। जस्ट इन प्लांट टिश्यू कल्चर आई टोल्ड यू कि प्लांट रिक्वायर्स ओनली द न्यूट्रिएंट सब्सटेंस और एसेंशियल केमिकल्स विच आर वी कैन से रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। इफ वी प्रोवाइड समहाउ टू द प्लांट विल ग्रो, चाहे फिर वो उसमें सॉइल हो ना हो। द मेन फंक्शन ऑफ सॉइल वी टॉक अबाउट टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, वो हम आर्टिफिशियली करवा रहे हैं, एंड अदर इज टू बाइंड इट और वी कैन से टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ द प्लांट, जो रूट से और ऊपर स्टेम से। बट इफ यू टॉक अबाउट द प्लांट इज स्मॉल साइज का है या स्मॉल प्लांट है, तो रूट का इतना ज्यादा उसमें रोल नहीं है। सेम वी कैन फॉलो फॉर वी कैन से ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर एनिमल्स, लाइक वी नीड टू we can say growth and repair of our body, we want carbohydrate, proteins, minerals, vitamins, या जो भी चीजें हैं, तो the same we can take in the form of tablet। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हम 1 किलो कोई, जैसे मान लिया 1 kg ऑफ हम कोई स्टार्च ऐसा कुछ खाएं और उसमें हमें कुछ अमाउंट ऑफ स्टार्च या कुछ कैलोरी ऑफ एनर्जी मिले, तो द सेम वी कैन यूज इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट और इन द फॉर्म ऑफ वी कैन से अदर थिंग्स, और इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट, जैसे प्रोटीन सप्लीमेंट आता है या कोई और आता है। दिस इज द ओनली वे टू प्रोवाइड अस न्यूट्रिएंट्स, बट दिस इज नॉट वी कैन से ऑल्टरनेट, एग्जैक्टली अल्टरनेट नहीं है कि हम फूड नहीं खाएं और इन्हीं सप्लीमेंट से काम चले। द मेन थिंग और इम्पोर्टेंट थिंग इज वी हैव टू फिल आवर स्टमक। अगर स्टमक को हम फिल नहीं करेंगे तो अंदर से वो जो एसिड है वो उसको डैमेज कर देगा, तो स्टमक को फिल करना भी जरूरी है। बट सम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स वी कैन टेक इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट और इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल, इन द फॉर्म ऑफ वी कैन से टेबलेट्स। जैसे हम आयरन की गोलियां लेते हैं या कोई मिनरल्स की है, विटामिन्स की है, कोई रिवाइटल आता है, देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स वी कैन से अवेलेबल इन मार्केट। तो वो क्या है कि द थिंग्स और द वी कैन से द न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी we can isolate from somewhere directly or we can grow somehow directly। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। नाम से पता चल रहा है कि सिंगल सेल प्रोटीन, लाइक किसी सेल को, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म को हम ग्रो करें और उससे जो प्रोटीन डायरेक्टली प्रोटीन वी कैन आइसोलेट और डायरेक्टली प्रोटीन वी कैन प्योरीफाई। वी कैन आइसोलेट एनी ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ए सेल। हम सेल से भी प्रोटीन बाहर निकाल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट बाहर निकाल सकते हैं, तो ग्रुप ऑफ सेल उसमें से भी निकालना मुश्किल काम नहीं है। तो सिंगल सेल प्रोटीन में हम क्या करते हैं कि देर आर सच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वी ग्रो देम इन लार्ज स्केल, और उसमें से जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, लाइक कोई विटामिन बना रहा है, कोई प्रोटीन बना रहा है, किसी में कोई स्पेसिफिक मिनरल्स है, तो वो हम आइसोलेट करते हैं और उनसे किसी टेबलेट की फॉर्म में, कैप्सूल की फॉर्म में, सप्लीमेंट की फॉर्म में वो फिर हम लेते हैं। तो इफ यू टॉक अबाउट के 3 to 10 kg ऑफ ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट होती है प्रोड्यूस 1 kg ऑफ मीट। 1 किलो मीट में मीट तैयार करने के लिए, यानी कि बायोमास ग्रो करने के लिए 1 kg बायोमास ऑफ एनी एनिमल। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड चेन। वी नो दैट व्हेन वी मूव फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, तो जो एनर्जी है वो क्या होती जाती है, घटती जाती है। ओके, तो
इफ यू टॉक अबाउट इन जनरल मोर देन 25% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन है वो सफरिंग फ्रॉम हंगर एंड मॉल न्यूट्रिशन। मॉल न्यूट्रिशन तो इज ए वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम, इंडिया में भी है, इतने लोगों मुझे भी हो कि आप तो पता ही नहीं है कि वी आर सफरिंग फ्रॉम मॉल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है? तो दैट मीन्स सिंगल सेल प्रोटीन इज ए वेरी वी कैन से इम्पोर्टेंट सोल्यूशन है। तो उसमें क्या करते हैं, वी ग्रो द सिंपल यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ लार्ज स्केल। अब सबसे बड़ी इसकी खासियत क्या है कि वी कैन ग्रो देम इन वेरी कैन से वेरी चीप वी कैन से रिसोर्सेज से हम इसको ग्रो कर सकते हैं। जैसे कोई वो है जैसे कोकोनट का हस्क होता है उसके ऊपर हम इसको ग्रो कर सकते हैं। कोई मान लिया वो है जो है या जो पराली जिसको बोलते हैं तूड़ी, जो दैट मीन्स ड्राई फोडर है, उस पे ग्रो कर सकते हैं। डंग पे ग्रो कर सकते हैं जैसे हम मशरूम को ग्रो करते हैं। ओके, वेस्ट वाटर में हम इनको ग्रो कर सकते हैं। जैसे कोई इनका शुगर केन का जो बचा हुआ कचरा है या उस पर हम इनको ग्रो कर सकते हैं। तो दैट मीन्स बाय इन्वेस्टिंग लेस वी कैन गेट मोर। दैट मीन किसी भी तरह का जो वेस्ट सब्सटेंस है, वेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उन पे हम इनको क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो ओनली 2 एग्जांपल गिवन हियर, वन इज ऑफ स्पिरुलिना, वन साइनोबैक्टीरिया है। तो इसमें दैट इज रिच इन प्रोटीन, मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन से वो रिच है। तो दैट मीन स्पिरुलिना की टैबलेट आती है, ठीक है, गूगल पे सर्च करना, तो वो टैबलेट लेते हैं। तो दैट मीन्स वी कैन गेट ऑल दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए सब्सटेंस इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन वो हो सकता है। देन अदर इज मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोफस, दिस इज ए बैक्टीरिया और दिस इज द रिच सोर्स ऑफ ए प्रोटीन है। ओके, और मशरूम भी है, वी कैन से नॉट एग्जैक्टली मशरूम इज वी कैन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट उसको भी हम दैट एक प्रोटीन सोर्स के लिए या किसी मिनरल्स के सोर्स के लिए हम उसको यूज करते हैं। तो जो मशरूम है दैट इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन मिनरल्स। ओके, सो दैट मीन इन सिंपल वी कैन से कि ग्रोइंग ऑफ माइक्रोब्स एंड सम ऑर्गेनिज्म और वी कैन से मशरूम लाइक ऑर्गेनिज्म फॉर ए रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स, प्रोटीन्स है, फैट उसके लिए। तो दैट इज नॉन एज सिंगल सेल प्रोटीन। फिर वो ग्रो होता है उसमें से फिर हम आइसोलेट करते हैं टैबलेट की फॉर्म में, किसी फॉर्म में उसको हम वी कैन से मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं और इनटेक कर सकते हैं। तो ये सिर्फ 2 एग्जांपल याद रखने हैं, मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस एंड स्पिरुलिना। दे आर वी कैन से फॉल इन द कैटेगरी ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। ओके।